بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں؟ ویلکم ٹو آور چینل ایوری ڈے ناول ود منت۔ کیسے آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ریڈ کر رہے ہیں ناول جس طرح سے کوئی مقتل سے گیا، تو اس کی ہم نے ابھی تک 4 ایپیسوڈ ریڈ کر لی ہے۔ نیکسٹ اب اس کی ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ چلیں اپنی ایپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں ناشتے پر تم دونوں کا انتظار کر رہی ہوں۔ ناشتہ گھر آ کر کرنا۔ امی نے دعوت دی تھی۔ وہ حیران ہوا۔ اتنی صبح؟ حیرت ہے، کیا بابا نے آپ کو اجازت دے دی ہے مجھے گھر کھلوانے کی؟ وہ طنز پر اتر آیا تھا۔ تم نے جو کیا ہے ساری عمر گھاؤ رستے رہیں گے۔ تمہارے دیے زخم بھلائے نہیں جا سکتے۔ ہمیں پرواہ ہے تو صرف رابیل کی۔ کیا کیا ارمان نہیں تھے اس کے لیے ہمارے دل میں؟ وہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ نہ اسے زندہ رہنے کے قابل چھوڑا ہے اور نہ ہمیں۔ جیتے جی مار ڈالا ہے تم نے۔ ایک داغ ساری عمر سفید براق سر پر رہے گا۔ بڑی خواہش تھی کہ اسے اپنے ہاتھوں سے تمہاری دلہن بناؤ۔ سب ملیا میٹ ہو گئے ہیں، اب اسے لے کر آ جانا۔ یہ نہ وہ ترستی رہے ہمارے لیے، اور ہے ہی کون ہمارے علاوہ اس کا؟ اپنے ہاتھوں سے سب کچھ خوشی خوشی کیا ہوتا تھا، کوئی دکھ نہ ہوتا۔ یہ دن بھی دیکھنے تھے ہمیں۔ وہ مسلسل کہتی رو رہی تھی۔ عبدالباری اس جذباتی بلیک میلنگ سے جھنجھلا گیا۔ حد ہوتی ہے، کیا محبت ہے آپ کی؟ ساری عمر اسی کے ساتھ، ساری ہمدردی اسی کے ساتھ ہے۔ میں تو جیسے کچھ لگتا نہیں، کیا کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا مجھے؟ اب کیوں رو رہی ہیں؟ یہ سب آپ کا کیا در ہے، مجھے الزام نہ دیں۔ جتنا انتظار میں نے کیا ہے وہ میری ہی شرافت ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، اگر مان لیتی تو کہیں اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا۔ اگر آپ کی خواہش تھی تو میری بھی خواہش تھی، سب عزت کے ساتھ ہو جاتا۔ آپ لوگوں کو ہی عزت کا سودا گوارا نہیں تھا۔ اب جو ہوا ہے بھگتے۔ رابیل ایک پر ایک ٹیک نظر ڈال کر وہ فون پر امی سے خفا ہو رہا تھا۔ رابیل اس کی ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری والی عادت پر دل ملانے لگی۔ عبدل کو تو ماں باپ کے احساسات کی بھی پرواہ نہ تھی، کوئی شرمندگی نہ تھی، معافی تلافی کا کوئی لفظ نہ تھا۔ کیسی بے حسی تھی یہ! شاباش بیٹے شاباش، تم یہ کہہ سکتے ہو۔ اولاد ہونا خوب آزماؤ ماں باپ کا دل کیا ہوتا ہے، جب اپنی اولاد پیدا کرو گے تو پوچھوں گی۔ وہ پھر رونے لگی تھی۔ خوش رہو، ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے صرف دعائیں ہی دعائیں ہوتی ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، مگر تم نے تو دعا دینے کے بھی قابل نہیں چھوڑا۔ اس بد نصیب کا دکھ رلاتے پھر کہہ رہی ہو اس کو لے کر ضرور آ جانا۔ یہ نہ ہو میں بوڑھی انتظار کرتی رہ جاؤں۔ انہوں نے خاص تاکید کر کے فون بند کر دیا تھا۔ اس نے موبائل آف کر کے بستر پر پھینکا۔ چہرے کے تاثرات سخت کبیدہ خاطر ہو چکے تھے۔ یعنی حد ہوتی ہے، مجھے ہی الزام؟ وہ بآواز بلند بڑبڑایا۔ تم نے میرا موبائل ریسیو کیا تھا؟ وہ اپنا سارا غصہ رابیل پر نکالنا چاہتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر چٹکنے لگی۔ اپنا بازو اس کے ہاتھ کی گرفت سے نکالا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارا موبائل ریسیو کرنے کا۔ مسلسل بیل ہو رہی تھی جب تم سوئے پڑے تھے۔ مجھے تو کچھ کرنا ہی تھا نا۔ جب یہ طے ہو چکا تھا کہ زندگی اب اسی شخص کے میت میں گزارنی ہے تو پھر کیوں دب کر رہے؟ اسی سوچ نے اسے لب کشائی پر مجبور کر دیا تھا۔ عبدل کے جو انداز و اطوار اور سرگرمیاں تھیں، ان کی موجودگی میں وہ اب لب سی کر زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ تم؟ عبدل نے اس کے یوں دو ٹوک انداز پر گھورا تھا۔ سر پر دوپٹہ نماز کے سٹائل میں ابھی بھی لپٹا ہوا تھا۔ بلیک دوپٹے کے اندر چھپا چہرہ نور کا حالہ لگ رہا تھا۔ چہرہ کل کی نسبت اب قدرے بہتر تھا۔ آنکھیں مسلسل گریہ زاری سے اب بھی سوجی ہوئی تھی، سرخ رنگ ہو رہی تھی، مگر آنکھوں کے برعکس چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ وہ چند ثانیے یکٹک دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی اس کی سب سے بڑی ضد تھی، اب بیوی بن چکی تھی۔ اس لڑکی کی خاطر اس نے کسی بھی جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اب وہ اس کی دست رس میں تھی، اس کے باوجود ایک کمی سی تھی۔ آئندہ میرا موبائل ریسیو کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ وہ ستم کر کے بستر سے اتر گیا۔ رابیل اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ لہجہ اب بھی زہر خند تھا۔ اس نے پلٹ کر گھورا۔ ایک دن کے وقفے سے کیا کچھ بدل گیا تھا؟ کل اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ آج اس انداز میں یہاں ہوگی۔ کل جب وہ اس سے زبردستی لے کر یہاں آیا تھا تو اس کے ارادے دیکھ کر وہ جان گئی تھی کہ وہ کچھ بھی کر لے وہ اب اسے جانے نہیں دے گا۔ وہ ہر حال میں عزت کی زندگی چاہتی تھی۔ جہاں تک ہو سکتا تھا اس نے اپنا بھرم رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر اب عبدالباری کے ارادے اس کے حوصلے پست کیے دے رہے تھے، سو وہ مجبور ہو گئی تھی۔ عبدالباری نے اس کی بات کا بھرم رکھا تھا، امی بابا اور فرقان بھائی کو بلوا لیا تھا۔ وہ اصل صورتحال سے قطعی بے خبر تھے۔ اصل معاملے کی خبر تو انہیں یہیں آ کر ہوئی تھی۔ وہ نہ جانے کیا کہہ کر وہ انہیں ساتھ لایا تھا۔ سب نے اسے سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر وہ اسے کسی بھی قیمت پر چھوڑنے پر راضی نہیں تھا۔ صرف ایک ہی رٹ تھی کہ نکاح ہوگا تو ابھی ہوگا، ورنہ وہ
यही रहेगी। मजबूरन वो सब बाहर गए थे। बाबा को कितनी तकलीफ़ हो रही थी, एकदम उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ था। निकाह के बाद वो सब चले गए थे। अम्मी उसे भी साथ ले जाना चाहती थी। उनका ख्याल था कि जो होना था वो तो हो गया, कम से कम रुखसती ही इज़्ज़त के साथ हो जाए, मगर वो उस पर भी राज़ी नहीं हुआ था। बहुत मायूस होकर वो रो गए थे। वो कल से यहीं थी, वो उस पर अपने सारे शौक़ पूरे कर चुका था, मगर दुःख था कि कम होने में ही नहीं आ रहा था। एहसास ज़िया था कि बढ़ता ही जा रहा था। तैयार हो जाओ, घर चलना है। बाथरूम से निकलने के बाद अब्दुल बारी ने उसे सोचों से बाहर ला पटका। वो गुस्ल ले चुका था। वो उसे देखती रही। मैं कुछ बकवास कर रहा हूँ। राबेल बीबी इसे अपनी तरफ यूं घूरते देखकर उसने टोका तो वो उठ खड़ी हुई। मैं तैयार हूँ। जूता पहनकर वो उठ खड़ी हुई। अब्दुल बारी ने इसे सर से पाँव तक जांचा। कपड़े तो चेंज कर लो। इसी हुल्ले में जाने का इरादा है क्या? इसके ब्लैक सलवट वाले लिबास के नाकदराना नज़रों से देखते उसने टोका। मैं जब कल घर से निकली थी तो यही पहना था। मुझे न इल्म था कि वापसी पर किसी अक़ूबत खाने में जाना पड़ेगा। फ़िलहाल मजबूरी है, मेरे पास यही एक लिबास है। तल्ख़ी से जवाब दिया था। अब्दुल बारी की पेशानी पर सलवटों का जाल बन गया। बहुत चलती है तुम्हारी ज़बान। अब बेगम साहिबा ज़रा अपने लहजे पर कंट्रोल रखा करें। मैं आदी नहीं हूँ इस लहजे का। इस किस्म की गुफ्तगू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बहुत बर्दाश्त किया है तुम्हारा ये ज़हरखंद लहजा, अब बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं रियायत देने वालों में से नहीं हूँ। उसके सामने आकर शहादत की उंगली उठाकर उसे वार्निंग दी थी। वो बेखौफी से सर झटक गई। बर्दाश्त नहीं थी तो फिर ये रिश्ता ही क्यों बांधा है तुमने? आदी नहीं हो तो बन जाएं एसपी साहब। अगर पहले ये लहजे नहीं सुने तो क्या फ़र्क पड़ता है, अब सुन लें। मुझे तो आदत है इसी ज़हरखंद लहजे में बात करने की, और सारी उम्र करूँगी। तो फिर कान खोल कर सुन लो तुम भी। मुझे ये ज़बान काटना भी आती है, समझी तुम? इसके बाजू को झंझोड़कर उसने इसे बिस्तर पर धकेला था। तो इंतज़ार किस बात का है? देर क्यों कर रहे हो? मैं तो मुंतज़िर हूँ। काटो ज़बान मेरी, मैं भी तो देखूँ तुम किस हद तक वहशीपन का मुज़ाहरा कर सकते हो, किस हद तक गिर सकते हो। आंसू बेख्तियार झलक आए थे। राबेल वो लब भींच गया। अब्दुल बारी जो सारी रात उसके आंसू से नहीं पिघला था, अब रुक गया। ना जाने क्या हुआ था। तुम अजीब मजनूनाना अंदाज में आगे बढ़कर उसने उसे कंधों से थाम कर खुद में भींच लिया था। यूं बोलोगी तो किसी दिन वाकई मेरे हाथों से ज़ाया हो जाओगी। राबेल के आंसू की रवानी में इजाफा होने लगा था। वो मुकम्मल तौर पर अब तवज्जो पर आमादा थी। ज़ख्म देखकर अब्दुल बारी की ये अब मरहम लगाने वाली अदा कतई ना समझ सकी थी। घर आए तो सब आके नॉर्मल अंदाज में मिले थे। बाबा सोए हुए थे। भाभी वगैरह से मिल कर खाने के बाद वो लाउंज में आ बैठी तो अम्मी और भाभी भी वहीं आ गई। फुरकान भाई अलबत्ता नाश्ते के बाद ऑफिस के लिए निकल गए थे। तुम साथ चलो या अभी ठहरना है? कुछ देर बाद अब्दुल बारी ने जान खड़ा हुआ। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, ये अब यहीं रहेगी। तुमने जहाँ भी जाना है जाओ, मगर अब ख्याल रखना ये अब इसी घर में रहेगी सबके साथ। इसकी बजाय जवाब अम्मी ने दिया था। क्यों? वो हैरान हुआ। हरगिज़ नहीं, मेरे लिए जब आपके घर में जगह नहीं तो फिर इसके लिए भी नहीं। तुम उठो राबेल, चलो। वो हमेशा अपना ही हुक्म चलाता था। कब तुमने हमें अपना समझा है? अपना समझा होता तो यूँ ना करते। अब तुम्हारा तो मुझे कोई भरोसा नहीं है, और उसको तुम्हारे रहम करम पर छोड़ दूँ। खुदा जाने क्या करते फिरते हो तुम, और क्या सलूक करोगे उसके साथ भी। तुम जैसे लोगों का ना कोई दीन होता है और ना ही ईमान। जिसके नज़दीक माँ की कोई इज़्ज़त नहीं, वो क्या जाने बीवी की इज़्ज़त क्या होती है। अम्मी ने गोया उसके दिल की बात कह दी थी। वो गुस्से से देखता रहा। ये यहीं रहेगी, बल्कि तुम भी अब अपने आप को संवारो। अकेले नहीं रह रहे हो। अब यही तुम लोगों का घर है, तुम भी यहाँ रहोगे। अम्मी ने फैसला सुनाया था। अच्छा, हैरत है, बाबा ने इजाज़त दे दी है मुझे भी इस घर में रहने की। वो तंज़े अंदाज में बोला। वो बाप है तुम्हारे, दुश्मन नहीं। वैसे भी जैसे तुम्हारी सरगर्मी है, राबेल को इस घर में अकेला तो नहीं छोड़ सकती। जैसे तुम हो वैसा ही तुम्हारा हल्का बाप भी होगा। तुमसे अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं, औरों से खाक होगी। अम्मी ने गुस्से से उसे उसका असल चेहरा दिखाया था। हद होती है, ज़बरदस्ती है क्या? यानी अब मैं आपके इशारों पर चलूं? वो तिलमिलाया था। एक तुमने अपनी की थी, अब हमारी मान लो। गलत नहीं कह रही मैं, ठंडे दिल से सोचो तो तुम्हें हमारा फैसला माकूल लगेगा। तुम तो सारा दिन ना जाने कहाँ कहाँ की खाक छानते फिरते हो। कभी तो रातों को भी गायब होते हो। ये वहाँ किसके सहारे होगी? चाहे तुम्हारे पीछे कोई चोर आए या डाकू, तुम्हें क्या परवाह होगी? अपनी सरगर्मियाँ ख़त्म होंगी तो तुम्हें कुछ और दिखाई देगा। अब के वो चुप हो गया था। राबेल ने उसका चेहरा देखा
कैसी बेबसी रकम थी उसके चेहरे पर, यानी इतना कुछ करने के बावजूद वो किसी न किसी तरह बेबस हो गया था। ठीक है, मगर मुझ पर कोई पाबंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी अपनी ज़िंदगी है, अपनी ज़ातियात है, मैं किसी की दखल-अंदाज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो कमरे से निकल गया था। अब्दुल बारी ने अपनी ज़िद पूरी कर ली थी। अब बाबा वगैरह का मुश्तरका फ़ैसला था कि वलीमा भी हो जाए। उनका फुरकान भाई का वैसे वसी हल्का बाप था, फिर रिश्तेदारी भी थी, वो किस किस से छुपाते। राबेल की खातिर वो मजबूर थे, कुछ भरम भी रखना था। निकाह जैसे भी हुआ था, वो लोग टाल मटोल कर गए थे, मगर अब आइंदा के मुताल्लिक राहमुआर करने को वो सब सोच रहे थे। दानिश भैया को असल सूरत से ला इल्म ही रखा गया था। सिर्फ दोनों के निकाह की इत्तला दी थी, बाकी तफसील हज़फ कर दी गई थी। अब उनका वलीमा था जो अच्छे खासे पैमाने पर हुआ था। लोग, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब इस कदर खुफिया निकाह करने पर इस्तफसार कर रहे थे, वो सब लोगों को बस किसी न किसी तरह मुतमईन करते रहे थे, जबकि अंदर ही अंदर बुरा हाल हो रहा था। एक तमाशा सा बन गया था, और जो तमाशे का सबब था वो शादो फरहान लोगों से मिल रहा था, यूं जैसे कुछ अनोखा निराला हुआ ही नहीं। खुदा खुदा करके वलीमे की तकरीब अपने अंजाम को पहुंची थी। सब ने शुक्र अदा किया था। तकरीब के अख्ताम पर वो लिबास बदल कर अभी बैठी ही थी कि भाभी, हफ्सा और रस्मा वगैरह आ गई। भाभी साथ चाय भी लाई थी। चारों खामोश से चाय पीने लगी। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी राबेल, पहले कभी भी तुम्हें यूं बने सवरे देखा नहीं था। पहली मर्तबा तुम इस कदर सजी हो, यूं लग रहा था कि जैसे हूर ज़मीन पर उतर आई हो। ईमान से हम तो हैरान थी, भाभी चाय पीते हुए कह रही थी। वो बमुश्किल मुस्कुरा कर उसकी हफ्सा और रस्मा वगैरह भी मुस्कुरा दी। अब्दुल बारी भी बहुत जच रहा था। दोनों साथ बैठे गजब के लग रहे थे। आह, काश ज़ाहिर की तरह उसका बातिन भी खूबसूरत और दिलकश होता, उस अस्मा ने दुख से कहा था। सब कुछ देर तक खामोश सी हो गई, तो कुछ वक्फे के बाद हफ्सा ने उसका हाथ थाम लिया। राबेल, अब हमारी सारी उम्मीदें अल्लाह के बाद तुम ही से हैं। वो जिन रास्तों पर चल रहा है उनसे उसे तुम ही वापस ला सकती हो। उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा तुम्हारे सामने है, उसके मिजाज के हर रंग से तुम वाकिफ़ हो, उसकी नेचर, आदत तवार और उसकी सरगर्मियाँ, कुछ भी तो तुमसे छुपा हुआ नहीं। हमने पूरी कोशिश की थी कि वो नॉर्मल इंसानों जैसी ज़िंदगी गुजारे, मगर सब तदबीरें कारत गई हैं। उसने सब जायज़ व नाजायज़ भुलाकर तुमसे शादी की है। तुम ही वो वाहिद हस्ती हो जो इसे बदल सकती है, इसके बाद इसकी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकती है। हफ्सा रुंधी हुई आवाज़ में उसे समझा रही थी। वो चुप रही। आपके लिए ये कहना आसान है, मगर जब आप सब क्या जाने ये करना किस कदर मुश्किल है। मैं किस अजियत में हूँ कौन जाने। अब तक तो मैं ये भी नहीं जान सकी कि आपके भाई की नज़र में मेरा असल मकाम क्या है। अभी तक तो मैं सिर्फ उसके लिए एक ज़िद ही हूँ, सिर्फ एक इंतकाम हूँ, ना जाने मेरा असल मकाम क्या है। अभी तो मैं उसको वक्ती सुकून पहुँचाने वाली जीती जागती लाश हूँ। वो बहुत मनफी अंदाज में सोच रही थी। आज जिस जिस तरह लोगों ने उसके और बारी के मुतालिक कुरेद कुरेद कर पूछा था, उससे इसके अंदर का इश्ताल बहुत बढ़ गया था। उसके अंदर की लड़की का डूब मरने को जी चाह रहा था। वो कुछ भी नहीं थी, मगर अब बदनाम हो चुकी थी। ये दुख ही बड़ा था, बहुत अज़ियत दे रहा था। कितने अरसे बाद हमने उसकी नज़रों में वही पुरानी जोत देखी है, वही इज़्ज़त, वही एहतराम देखा है। उसकी आंखों में जो कभी आने पर वो हमें दिया करता था, वो बदल सकता है अगर तुम कोशिश करो तो। अस्मा भी कह रही थी। कैसे कोशिश करूं? अगर ज़िद की बजाय कोई और जज्बा होता तो शायद मैं अपनी ज़ात की इतनी बेतौकीरी और इज़्ज़त नफ्स की इस कदर पामाली बर्दाश्त कर भी लेती, मगर अब ये दुख ही कम नहीं होता कि मैं सिर्फ एक ज़िद थी, चाहे जाने की ख्वाहिश कैसे नहीं होती। और यहाँ तो एक लफ्ज़ भी नहीं सिवाय बेइज्जती के। हर शौक़, हर लगन, हर ख्वाहिश ही मर गई है। अब तो अपना आप एक बुत की मानने लगता है, जिससे अब्दुल बारी सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करता है, वरना दरमियान में तो कुछ भी नहीं। आज के तजर्बे ने इसे बहुत दुखी और आज़रदा कर दिया था। कुछ कहने से खुद को फिर भी बाज रखा था। ये सब कुछ देर मज़ीद बैठी थी। अब्दुल बारी कमरे में दाखिल हुआ तो वो तीनों उसे शब बख़ैर कह कर कमरे से निकल गई थी। वो तकिया दुरुस्त करके दराज़ हो गई थी। नमाज वो लिबास बदलती पड़ चुकी थी, अब सिर्फ सोने की ख्वाहिश थी। जी, तो ये है आज की एपिसोड। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी एपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।